Hello everyone. This was the second test of the test series. This test series consists 7 unit tests, 2 section tests. Section test means test of class 11th and test of class 12th, and then full syllabus test will going on till the Neet exam 2021, right? So let's have the solution of the second test. These are the descriptive solution. Later on you will find one shortcut solutions also for this. Those who have a little weak concept, they must see the descriptive solution, and those who have good concept, they must see the shortcut solution. So choose accordingly. In the description questions are given, and so choose the question which you want to see, right? So let's start. That's first question. A body of mass 2 kg moving on a horizontal surface with an initial speed of 4 meter per second come to rest after 2 seconds. If want to keep this body moving on the same surface with a velocity of 4 meter per second, the force required is, right? So what you need to calculate as the retardation. How much is the retardation, right? We need to overcome that, right? So this comes to rest with the initial speed 4 minus retardation A in time 2 seconds. So the retardation is 2 meter per second square. We need to overcome this retardation, so we need to apply a force which overcome this retardation, that is equal to mass. Mass is how much? That is 2 kg, and the acceleration is 2. So the 4 Newton force is required to keep this body moving. So this will be the answer, right? Quite easy question. The next, what force should be applied on a 5 kg body so that it has a downward acceleration of 4 meter per second square, right? This is a body, and what we want is downward acceleration of force. We all know the force of gravity is there, so we need to apply a force upward, because of the weight the body will come down with acceleration. What? Imagine karo, this force is not there, then what should be the acceleration? The acceleration will be equal to g. The acceleration will be equal to g, right? That will be g. But in our case the acceleration is 4. So it is lesser acceleration less than gravity. So definitely we have applied a force upward. So this is the force. Now use the simple calculation, that is mg minus F is equal to ma. The 5 kg, 5 into 9.8 minus F is equal to 5 into 4. So that will be F is equal to 5, 9, 45, 49 and 20, 29. So this is 29 Newton upward. So an upward force will be acting on the system, right? The question number 4. Two masses 10 kg and 20 kg are connected by a massless spring. There are two masses which are connected by a spring. This is 10 kg and this is 20 kg. A force of 200 Newton is applied over there, and this mass, 10 kg mass, got an acceleration of 12 meter per second square. So there will be a restoring force in the spring. There will be a restoring force in the spring. This force will be acting like this F and acting like this F. So if I look only this object, then the only force acting on this object is F. So F is equal to
mass into acceleration, that is 120 Newton. Right. Now if I look to this object, इस object को देखें, so this object has two forces, 200 Newton in forward direction while F in backward direction. So this will give you 200 minus F is equal to 20 into A. Let us suppose the acceleration of this is A. इसका acceleration suppose कर लेते हैं A है. So ये 200 न्यूटन फोर्स इसको उधर ले जाएगी, F उसको बैकवर्ड पुल करेगी. So net force will be how much? 200 minus F. So that force will cause the acceleration. So this 200 minus F is equal to 20 into A. We know that F is equal to 120. So this will become 80 is equal to 2 into A, and A is equal to 4. So the acceleration of the object will be 4 meter per second square. Right? So question इतने मुश्किल नहीं होते, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो हो जाते हैं. Okay? The question number 4. The minimum acceleration with which a fireman can slide down a rope of breaking strength 2/3 of its weight. What is this question? ये suppose करो fireman है and it is sliding down with some acceleration A. The rope can take weight maximum 2/3 of the person. Maximum 2/3 weight ले सकती है, तो that means जो maximum tension in the string हो सकती है, that can be 2/3 of the weight. So 2/3 of mg, while the weight of the person is mg. So what should be the acceleration? Simple solution, mg minus 2mg/3 is equal to ma. Solve करेंगे तो आंसर आ जाएगा g/3. Right? So that will be the answer. Now there is one thing. You have studied apparent weight. When an object is falling down with some acceleration, then its weight is lesser than actual weight. We know if it is free fall, then the weight will be 0. अगर free fall हो जाए तो weight 0 हो जाएगा. अगर कुछ acceleration है तो weight कम हो जाता है, और वो weight कितना हो जाता है? हमने पढ़ा है mg minus a. तो accordingly when the person is coming down with the acceleration g/3, तो its weight become 2/3 mg and the string is capable to handle this weight. तो जैसे ही आदमी नीचे स्लाइड करता है g/3 एक्सेलरेशन से, उसका वेट जो अपरेंट वेट है वो 2/3 mg हो जाता है, and accordingly the string is able to handle this weight. Right? So that was question number 4. Now the question number 5. A block of mass A 200 kg is tied over the mass 300 kg. The coefficient of friction between A and B is 0.25 and the floor is 0.5. Right. So this is what an object is placed. Another object is placed over it. We have applied a force F over this, and here it is tied with a string. Now what will happen? This block will tend to slide in this direction. When the block will tend to slide in this direction, there will be two friction force, one on this. This is friction between B and ground, and one force of friction will be here, that is friction between A and B. Right? So first we need to calculate the friction, these two friction. This force when overcome these two friction, then the object will move. तो ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए ये फोर्स इन दो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए. सो द फोर्स शुड बी इक्वल टू F AB प्लस F
B, G. इन दोनों, this is the minimum force we needed, right? Now, this is the normal reaction on A, and this is the normal reaction on B. So you just need to calculate the weight on this surface. Normal reaction of B will be how much? The total weight on this surface. Total weight on this surface is how much? This and this. That is 200 plus 300 into G. So this will be the normal reaction at B. So friction at surface AB is coefficient of friction between A and B, between B and ground. Sorry, we have to take this between B and G. B and G, between B and ground, coefficient of friction is 0.2. So this is 5000 into 0.2, that is 1000. Now what is the normal reaction at this surface? And A, this is equal to 200 into G, that is 2000. So the friction force between A and B is, the friction force is coefficient of friction mu into N. So mu, coefficient of friction between A and B is 0.25 into 2000, that is 500 Newton. So we got this force 1000 Newton and 500 Newton. 500 plus 1000. So that is equal to 1500 Newton. And this will be your answer, 1500 Newton. So the answer is here, right? So next देखते हैं, that is question number 6. A cricket ball of mass 150 gram is moving with a velocity 12 meter per second. This is a cricket ball moving with velocity 12 meter per second. The mass is 150 gram. The mass is 150 gram, right? And is hit by a bat so that it returned with the velocity, then it gone, it is hit, and then it returned by the velocity 20 meter per second. So average force exerted by, and that time interval is 0.1. Correct? Now force we know is change in momentum upon time. Change in momentum, m v2 minus v1 upon delta t. Now mass is 150 gram. So 150 into 10 to the power minus 3, that is the mass. Now the concept of velocity, right? Dekho, we have to find the force of blow, force by the bat. Let's take that direction as positive. वो डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हैं तो दूसरी डायरेक्शन नेगेटिव हो जाती है. तो फोर्स की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो दिस विल बिकम पॉजिटिव एंड दिस विल बिकम नेगेटिव. सो V2 इज पॉजिटिव minus 12 and then upon time is 0.01. This is 0.01. So this will come as 20, 32, 150. This 10 to the power minus 3 and this gone. That is 32 into 15. That is 480. So that will be 480 Newton. Right? So this was question 6. Simple question है. बॉल गई, बैट ने हिट किया, मोमेंटम में चेंज हुआ, मोमेंटम चेंज कैलकुलेट करो. मोमेंटम चेंज क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम mv2, इनिशियल मोमेंटम mv1, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट.
A vehicle having a mass of 1000 kg is moving with uniform velocity of 20 meter per second. The sand is dropped into it at the rate of 5 kg per minute. The mass of the system is changing. That is called dm by dt. This is 5 kg per minute. So that is 5 by 60. That is 1 by 12 kg per second. It's always good practice to work in SI units. हमेशा SI unit में काम करो, ये अच्छी practice होती है. So then 1 by 12 kilogram per second weight change हो रहा है. We want to move it with the velocity 20 meter per second. Right? What is the scene here? The velocity is constant. If I go by the Newton second law, अगर न्यूटन सेकेंड लॉ से बात करूं तो F इज इक्वल टू होता है डी पी बाई डी टी. यू कैन राइट P एज एम वी बाई डी टी. नाउ इन दिस केस V is constant, so this comes out as V dm by dt. So apply this relation F is equal to V dm by dt. So we get F is equal to 20 into 1 by 12. So that you will get 5 by 3 Newton. So the force is 5 by 3 Newton. ठीक है. तो अभी तक ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है. Actually the test was very realistic. बिल्कुल जैसा होना तो होता है नीट का वैसा ही टेस्ट था. आप लोग थोड़े से एफर्ट्स मारेंगे तो फिजिक्स इतना मुश्किल नहीं लगेगा. नहीं. Now the question number 8. There is two pulley system, right? That is, one of the system is this. The mass is hanging as 2m, and there the mass is hanging as m. And the another is this one. The mass is hanging m, and a force is applied. F is equal to 2mg. We have to find acceleration का relation find out करना है in both the cases. So पहले calculate करते हैं ये. मान लेते हैं A1 acceleration से नीचे आएगा तो ये A1 acceleration से ऊपर जाएगा. ये अगर A1 acceleration से नीचे आएगा तो ये A1 acceleration से ऊपर जाएगा. ये वेट हो जाएगा 2mg. ये टेंशन हो जाएगी T. ये भी टेंशन T, क्योंकि सेम रस्सी है तो टेंशन सेम रहेगी. तो ये हो जाएगा mg. अगर मैं इसके लिए कैलकुलेट करूं, सो द 2mg फोर्स इज इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. ये 2mg फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है और m इधर T अपोजिट है. तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे 2mg माइनस T इज इक्वल टू 2ma. इफ वी लुक टू दिस, इन दिस केस A1 लिखना 2ma1. अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में टेंशन है और वेट अपोजिट है. तो हम क्या करते हैं, जब फोर्स एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं और अपोजिट टू एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं. तो इन दिस केस फोर्स विल बिकम 10t माइनस mg इज इक्वल टू ma1. इसको सॉल्व करो, t कैंसिल हो गया. mg इज इक्वल टू 3ma1. तो a1 इज इक्वल टू g by 3. So that is the acceleration in first case. Now let's find out the acceleration in the second case. In the second case, what is there? There is no weight and the tension will be as usual, the weight mg, and the tension, let's say this will come down with the acceleration a1, this will go up with acceleration a1. So if I apply the law here, the force in direction of acceleration is 2mg, force opposite to acceleration is t, and there is no mass
So what we get, T is equal to 2 mg. If we apply the same relation for this, then T is in direction of acceleration a1. So that will be T minus mg is equal to ma1, and T we get 2 mg minus mg is equal to ma1. So that will give you a1 is equal to g. Sorry. Right. इसको आप a2 ले सकते हो, मैंने a1 ही ले लिया हर जगह, ये सिंपली a भी ले सकते हो, तो a ले लो. देन नाउ अब आपको देखना है रिलेशन, इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है और इसका एक्सेलरेशन कम है, तो द एक्सेलरेशन ऑफ m इज मोर इन द सेकेंड केस या लेस इन फर्स्ट केस. Less in first case than in second by a factor of 1/3. So that is the right answer. But what has happened in this question? इस question में हुआ क्या? देखो पुलिंग फोर्स तो यहाँ भी 2 mg दी और यहाँ भी 2 mg दी, फिर एक्सेलरेशन कम क्यों हुआ? फोर्स मूव कराने वाली तो सेम है दोनों जगह, लेकिन यहाँ पे टोटल मास जो मूव कर रहा है वो m कर रहा है, और यहाँ पे टोटल मास जो मूव कर रहा है वो 3m कर रहा है. तो यहाँ पे मास ज़्यादा है मूव करने वाला, 3m मास है, 3m मास है तो इसलिए एक्सेलरेशन कम हो गया. यहाँ पे मास कम है तो इसलिए एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गया. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. A balloon has 2 grams of air. If a small hole is punched into it, the air comes out with a speed of 2 meters per second. If the balloon shrinks completely in 5 seconds, here the mass of balloon is changing. And what is the rate of change of mass of balloon? The rate of change of mass of balloon is total mass, how much? 2, and finally 0. ग्राम में है तो 10 to the power minus 3. In how much time? 5 seconds. So this is 4 into 10 to the power minus 4. And what is the speed? That is 2 meters per second. So force, as we did in earlier question, जैसे हमने पहले एक question में किया था, F is equal to V dm by dt. So that is 2 into 4 into 10 to the power minus 4. The answer is 8 into 10 to the power minus 4 Newton. ठीक है भैया, समझ में आ रहा है ना? अरे इतना मुश्किल नहीं होता है, राइट? क्या है, मास चेंज हो रहा है, वेलोसिटी. आपको देखना क्या है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, मास कॉन्सेप्ट है तो एम में लगा दो, राइट? The next question. A block of mass 5 kg is placed on a rough inclined plane. The inclination is gradually increased till the block just begin to slide. The inclination of the plane is then in 3 in 5. देखो, ये हम inclination बढ़ाते चले गए. ये ऐसे था, हम इसको बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए. एक पॉइंट पे पहुंच के इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट था उसने स्लाइड करना शुरू कर दिया. एंड दैट टाइम द इंक्लिनेशन इज 3 in 5. 3 in 5 का मतलब क्या होता है? 3 in 5 का मतलब होता है इफ दिस लेंथ इज 5 देन दिस हाइट इज 3. तो इससे हमें थीटा मिल जाता है, साइन थीटा. तो साइन थीटा कितना हो जाता है? 3/5. सो इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन 3 in 5 का मतलब समझे, 5 मीटर ऐसे चला तो 3 मीटर ऊपर पहुंच गया, तो दैट गिव्स यू एन एंगल. तो साइन थीटा हो गया 3/5. अब ये ऑब्जेक्ट ने जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दिया, जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दिया तो एक्सेलरेशन तो 0 ही होता है. ये मास है, इसका एक कंपोनेंट वेट का इस डायरेक्शन में होता है mg साइन थीटा, एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होता है mg कॉस थीटा,
और ये हमारा होता है नॉर्मल रिएक्शन, एंड इधर हो गया फ्रिक्शन। तो ये सारी फोर्सेस इस पे लग रही है। वेट का एक कंपोनेंट नीचे की तरफ, दैट इज mg sin थीटा, एक कंपोनेंट ऐसे। वेट तो एक्चुअली परपेंडिकुलर था ना, वेट तो ऐसे था और ये एंगल था थीटा, तो हमने इसके दो कंपोनेंट कर दिए, एक इधर mg cos थीटा और एक इधर mg sin थीटा। अब नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो गई? नॉर्मल रिएक्शन हो गई mg cos थीटा के बराबर, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाती है म्यू एन, तो फ्रिक्शन फोर्स हो गया हमारा म्यू mg cos थीटा, राइट। अब इट इज स्लाइडिंग डाउन विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के स्लाइड कर रहा है। अगर बिना एक्सेलरेशन के स्लाइड कर रहा है तो इन डायरेक्शन ऑफ मोशन नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए। नेट फोर्स जीरो कब होगी? जब डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, यानी mg sin थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कितना है? म्यू mg cos थीटा, तो mg कैंसिल हो गए, तो म्यू इज इक्वल टू आ गया tan थीटा। अब tan थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर ये 3 है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा, तो tan थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 4/5। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। और वैसे भी देखो, जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करने वाला होता है किसी भी रफ प्लेन पे, द इंक्लिनेशन एट विच ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लाइड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रेपोज। उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रेपोज, एंड एट एंगल ऑफ रेपोज म्यू इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो आप सीधे सीधे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ एंगल ऑफ रेपोज, तो म्यू इज इक्वल टू tan थीटा लगाओ, तो tan थीटा कितना हो गया? 4/5। तो ये था द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। A body is kept on a smooth incline having inclination 1 in x will remain stationary relative to inclined plane if the plane is given a horizontal acceleration equal to। ये हमारा कोई प्लेन है, एंड इसमें भी वही आ गया 1 in x। 1 in x आ गया ना, तो साइन थीटा कितना हो गया? 1/x। तो ये तो हम बाद में करते हैं, पहले तो ये देखते हैं कि इसको हमने एक्सेलरेशन दिया और ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी हो गया, ये ब्लॉक यहाँ पे स्टेशनरी हो गया। ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स होती है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये है, ब्लॉक स्टेशनरी हुआ क्या? नहीं, ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू प्लेन स्टेशनरी हुआ। तो अगर प्लेन आगे जा रहा है तो ब्लॉक भी आगे जा रहा है, तो ब्लॉक इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, तो जो भी प्लेन का एक्सेलरेशन है वही ब्लॉक का एक्सेलरेशन है। तो अगर प्लेन का एक्सेलरेशन a है तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी a ही होगा। अब आपको फोर्सेस के कंपोनेंट करने हैं। हम फोर्सेस के कंपोनेंट करते हैं हमेशा इन डायरेक्शन ऑफ अलोंग एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। जो भी हम फोर्स के कंपोनेंट करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन एंड अलोंग द एक्सेलरेशन करते हैं। इस केस में एक्सेलरेशन किधर है? हॉरिजॉन्टल है, तो हमें दो कंपोनेंट करने पड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। वेट तो ऑलरेडी वर्टिकल है, तो वेट के तो कंपोनेंट होंगे नहीं, तो कंपोनेंट किसके होंगे? नॉर्मल रिएक्शन के। तो नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट कर देते हैं। सो वन विल बी दिस कंपोनेंट एंड अनदर विल बी दिस कंपोनेंट। अब एंगल, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। जिसके साथ एंगल होता है वो कॉस कंपोनेंट होता है और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होता है। नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज, ये कंपोनेंट तो वेट को बैलेंस करेगा और ये कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट करेगा। ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन का कॉस कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा और साइन कंपोनेंट एक्सेलरेट करेगा। तो दैट इज वेरी सिंपल, n sin थीटा
इज इक्वल टू एम ए एंड एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो इसको काट पीट के हमारे पास आ गया टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। अब टेन थीटा कैलकुलेट करना है। अकॉर्डिंग टू दिस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। व्हाट डज इट मीन? अगर ये 1 है तो ये x है, तो ये कितना हो गया? रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो टेन थीटा कितना हो गया? 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारा आ गया a इज इक्वल टू जी, टेन थीटा हो गया 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ गया। एंड इसमें ऑप्शन दे नहीं रखे, आप अपने पास से ऑप्शन में से मैच कर लेना, आंसर यही मिलेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। देन क्वेश्चन नंबर 12, टू masses A and B of 10 kg and 5 kg। ये एक मास है 10 kg, ये एक पुली के ऊपर से जा रहा है, एंड ये एक मास हैंग कर रहा है 5 kg। अब हमने इसके ऊपर एक और मास रख दिया C, मान लो ये M है। अब ये सिस्टम मूव नहीं करना चाहिए, तो ये सिस्टम क्यों मूव नहीं करेगा? पहले तो ये सोचो मूव क्यों करेगा। देखो यहां पे एक वेट आ गया 5g और ये टेंशन, तो ये वेट की वजह से सिस्टम मूव करेगा। देन ये टेंशन यहाँ पे आ जाएगी और ये टेंशन इसको मूव कराने की कोशिश करेगी, लेकिन यहाँ पर एक फ्रिक्शन हो जाएगा, ये फ्रिक्शन इसको रोकेगा। तो हमारा टेंशन फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए पहले तो टोटल वेट ले लो, कितना हो गया 10 प्लस एम जी। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन हो गया 10 प्लस एम जी, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, तो ये हो गए 0.2 जी 10 प्लस एम। ये हमारा फ्रिक्शन आ गया, इसको संभाल के रख लेते हैं, अभी आगे का काम करेंगे। क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा, तो दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू 5g, एंड क्योंकि सिस्टम मूव नहीं कर रहा, so this tension should be equal to friction. So this friction should be equal to 5g. तो वैल्यू रख दो 0.2g 10 प्लस m इज इक्वल टू 5g। जी कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो m इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो अगर हम 15 kg मास इसके ऊपर रख देते हैं तो पूरा सिस्टम मूव नहीं करेगा, राइट? आप लोगों के दिमाग में एक बार आया होगा कि ये 5 kg है तो ये मूव तो वैसे ही नहीं करेगा, कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, बिना रखे ही मूव नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये 5 kg इसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स में कन्वर्ट हो गई थ्रू द टेंशन। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये मूव कर जाएगा, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 13, एक बॉल को हमने थ्रो किया v वेलोसिटी से, एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस फोर्स ऑफ एयर F। देखो रेजिस्टेंस फोर्स हमेशा अपोजिट टू मोशन होती है, तो अपोजिट टू मोशन इसमें दो फोर्सेस हो गई, एक इसका वेट और एक F। सो रिटार्डेशन ये कह ले एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में जब ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ये फोर्स तो नीचे को लग रही है, तो F प्लस एम जी इज इक्वल टू एम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। अब ये ऑब्जेक्ट जाएगा और फिर ये यहाँ रुक जाएगा, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर ये वापस आएगा एंड देन यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं। लेकिन जब ये नीचे मूव कर रहा है तो जो
रेजिस्टेंस फोर्स है वो तो अपवर्ड होगी और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो गया। तो ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ये दोनों फोर्सेस अपोजिट है, ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए एक्सेलरेशन दोनों डायरेक्शन में डिफरेंट हो जाता है, इसलिए स्पीड भी डिफरेंट हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, ये तो आ गया था हाउ मच, F प्लस एम जी बाई एम, और इधर क्या है एम जी माइनस एफ बाई एम, राइट। ये हमारे एक्सेलरेशन आ गए। अब देखो इन डाउनवर्ड मोशन और अपवर्ड मोशन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेम, राइट, हाइट सेम है। नाउ एक वेलोसिटी जीरो है इनिशियल और फाइनल में से एक वेलोसिटी जीरो है। तो जब एक वेलोसिटी जीरो हो गई तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 2AH, तो h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2A। अब दोनों डायरेक्शन में हाइट तो बराबर है, तो v स्क्वायर अपॉन 2A अपवर्ड इज इक्वल टू v डैश स्क्वायर अपॉन 2A डाउनवर्ड। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ गया v डैश स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर इज इक्वल टू a in downward upon a in upward. Acceleration in downward direction mg minus f by m, और acceleration in upward direction mg plus f by m, mm कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v डैश अपॉन v स्क्वायर, सो v डैश बाई v इज इक्वल टू रूट mg माइनस f अपॉन mg प्लस f। सो अकॉर्डिंगली v डैश कितना हो जाएगा, इसको इधर से हटा दो और इधर लगा दो, तो v डैश इज इक्वल टू v mg माइनस f अपॉन mg प्लस f। अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी वापस आएगा तो स्पीड कम होगी। क्यों कम होगी, देखो जब रेजिस्टेंस फोर्सेस नहीं होती तो जिस स्पीड से फेंकता है उसी स्पीड से वापस आता है, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स है तो बॉल की एनर्जी लॉस होती जाएगी, एनर्जी लूज होती जाएगी, तो बॉल एनर्जी लॉस करती रहेगी, तो फाइनली तो एनर्जी कम ही बचेगी ना, तो स्पीड पहले से कम ही होगी, राइट। तो इसलिए ये भी ऑप्शंस में आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि कौन सा होना चाहिए और कौन सा नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite in force-free space sweeps dust at this where m is mass and the deceleration। रिटार्डेशन निकालना है, सिंपल। फोर्स कितनी हो गई, v dm बाई डी डी, v कितना, v तो v है, dm बाई डी टी कितना है अल्फा v, तो ये हो गई अल्फा v स्क्वायर। तो रिटार्डेशन कितना हो गया, नेगेटिव साइन ले लो, फोर्स बाई मास, नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि रिटार्डेशन है, तो माइनस अल्फा वी स्क्वायर बाई एम। सो दिस विल बी, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, टू बॉक्सेस, वन ऑफ मास 20 kg and the other of 40 kg are sliding down a frictionless inclined plane that make an angle 30 degree with the horizontal। ये दो मासेस है, एक का मास 20 kg, एक का मास 40 kg। ये स्मूथ प्लेन है, राइट। तो फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ये कंपोनेंट इसको एक्सेलरेट करेगा, mg sin theta is equal to, so the acceleration do not depend on mass। acceleration मास पे डिपेंड ही नहीं करता,
एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। अब क्योंकि एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो दिस इज g/2, सो दोनों ही g/2 एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, तो सेम एक्सेलरेशन वाला कौन सा है, दिस। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, बस ट्रिक है कि मास ज़्यादा हो गया तो हम सोचते हैं एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, नहीं। अरे जब फोर्स सेम है, जब दोनों के लिए फोर्स खुद वेट है तो उसमें ऑलरेडी एम हो ही जाता है, और वैसे ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम वही है, एक बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं क्योंकि ये स्मूथ प्लेन है, तो आप लाइट बॉल को थ्रो करो या हैवी बॉल को थ्रो करो तो दोनों सेम स्पीड एक्वायर करती है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, बिकॉज स्मूथ सरफेस है, कोई और फोर्स है ही नहीं, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है तो मास पे डिपेंड करेगा ही नहीं। सो दिस वाज आवर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 15। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया, राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक ए वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। थैंक यू। अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 to 30।